Then we will be talking about the different methods that we use to determine the levels in the particular leveling procedure. So we have generally two types of methods that we use to uh, get out the different types of levels or from the starting and the ending position of the instrument point or stations. So we have first one is rise and fall method, and the second one is height of collimation method. So I will just play a video so that you can be able to see that how you have to use the rise and fall method and height of collimation method. And this is very very simple, but there is some minor calculations in that part also. So just let me play a video that I found it on YouTube so that you can able to see then how it is being done and how can be calculated. I hope you are able to see the screen now. So this is the height of instrument method. Then we have to put out the names and the some considerations we have to do in a simple table. So this is the table that we have to consider while calculating the levels of in the field. So we have to make out these considerations in a plain paper, or we have the level book of obviously. So we just point out the station that we have on the site, and then back side will be counted, then intermediate side, then foresight, then height of instrument, then the reduced level, or we call that is the marks in the benchmark that will will be standard one. So you have to follow this criteria while taking the readings on site. So let me just play the video and you will be able to see then how it is being done on site. Okay, then we will move on to the rise and fall method. तो पहले आ जाते हैं इसमें बेसिक्स क्या है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच आई, जो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंचमार्क या फिर रिड्यूस्ड लेवल, या तो बेंचमार्क अगर दिया होगा या रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड। एक जगह पर अगर हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो वो होता है बेंचमार्क प्लस बैक साइड, या होता है रिड्यूस्ड लेवल उस पॉइंट का प्लस बैक साइड। So ये आ जाता है। you have to remember this formula for by using the height of instrument method. You have to remember this expression as well, and there is another expression if you the height of instrument is not given and you have to find out the backside and RL, so you can use it by this formula as well. आता है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जहां पर हमारे पास बैक साइड होगा वहां पर हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जरूरी निकालना है। जहां पर इस सेक्शन में हमारे पास बैक साइड यहाँ पर है तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, और यहाँ पर बैक साइड है तो यहाँ पर भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर बैक साइड है तो यहाँ पर भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। ऐसे ही होता है रिड्यूस्ड लेवल। किसी पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल होता है, किसी पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस होता है फोरसाइट एफ एस, फोरसाइट या फिर इंटरमीडिएट साइट, जो भी आपके पास दिया है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोरसाइट माइनस करते हैं तो रिड्यूस्ड लेवल उस पॉइंट का आ जाता है, या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइट माइनस कर देते हैं तो उस पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल निकल के आता है। हमारे पास अब ये जो न्यूमेरिकल एक दिया है यहाँ पर, इसमें साइड तो दिखाई है, ये जो मैंने प्रॉपर्ली सेट किया है इनको कहाँ पर कौन लगा दिया है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि ये बैक साइड कहाँ से लगाते, कैसे ऐसे यहाँ पर लगाते हैं, और फोर साइड कैसे यहाँ पर लगाते हैं, इंटरमीडिएट साइड कैसे, उसके बारे में पहले भी वीडियो मैंने बनाई है, वो राइज एंड फॉल मेथड वाली वीडियो है, उसमें मैंने प्रॉपर्ली दिखाया है कि कैसे हम इसको अरेंज करते हैं प्रॉपर्ली, तो वो वाली वीडियो भी आप देख लेना। तो अब आ जाते हैं आज के इस टॉपिक पे। अब क्या करना है हमें, पहला ही हमारे पास बेंचमार्क जो दिया है, बेंचमार्क या तो दिया होता है। So dear students, you just have to remember that the whenever the foresight is given, so this means this is the changing point of the survey. Okay, so आप जब leveling कर रहे हैं तो जब आपने अपना इंस्ट्रूमेंट जहां से शिफ्ट किया, so this is a final reading. So I've already talked about the in the previous class that the आप foresight वहीं पे लेते हैं जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे. So this is the final reading.
देन आपका जो नेक्स्ट जो स्टेशन आपने जब शिफ्ट किया अपना जो आपने लेवलिंग जो ऑटो लेवल आपने जहाँ पे सेटअप किया था उसके बाद जब आपने चेंजिंग पॉइंट दिस इज द यू कैन कॉल इट एज चेंजिंग पॉइंट। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं ये जो फाइनल पॉइंट आपका आ गया, फिर नेक्स्ट वन दैट इज नेक्स्ट वन। ओके, सो you do not have to get confused in this part. Okay, तो हमने इस वक्त 100 ले लिया है, या तो दिया होता है या फिर एज्यूम करना पड़ता है। हमने 100 एज्यूम किया है, तो मैंने आपको बता दिया जहां पर बैक साइड होता है वहां पर बेंचमार्क प्लस बैक साइड करके हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल देते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर बेंचमार्क तो हमारे पास पता है 100 का और बैक साइड 0.578, तो ये वाला फार्मूला लगा के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड लगा के हम यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। वो आ जाएगा 100 प्लस 0.578 करके आ जाएगा 100.578। अब देखो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अब जो आगे वाली रीडिंग है जब तक हमारा नेक्स्ट बैक साइड आ जाएगा, इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड माइनस करते करते जाना है और रिड्यूस्ड लेवल उस पॉइंट का निकालना है। पहले का बेंचमार्क दिया है 100, तो उसका रिड्यूस्ड लेवल भी हम 100 ले लेंगे, उसका रिड्यूस्ड लेवल भी 100 ही होता है। अब देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा ये आ गया बैक साइड, क्योंकि बैक साइड दिया था यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया। अब इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि रिड्यूस्ड लेवल एक पॉइंट का होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड। अब आगे हमारा इंटरमीडिएट साइड दिया है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड से हमारा रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा इस पॉइंट का। तो जो है 100.578 माइनस करेंगे 0.933, ये आ गया हमारा रिड्यूस्ड लेवल। क्या आ गया इस पॉइंट का 99.645। अब तो यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने इंस्ट्रूमेंट फिर से चेंज नहीं किया है, इंस्ट्रूमेंट तब चेंज होगा जब हमारे पास बैक साइड दिया होगा। तो इंस्ट्रूमेंट यही है, तो इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाला इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो इसका रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा 100.578। 100.578 माइनस करेंगे हम 1.768, ये वाला फोर साइड, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड से हम रिड्यूस लेवल निकालते हैं। माइनस 1.768 ये आ जाएगा हमारा 98.81। ऐसे ही करके अभी भी हमारा बैक साइड नहीं आया पीछे से, तो इसी से माइनस करते जाएंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड करके हमारा ये वाला रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा है, so you have to keep subtracting the intermediate side or foreside until and unless you reach to the next back side you have taken on the side. Okay, 100.578 माइनस करेंगे 2.450 तो हमारा आ गया 98.128 आ गया ये। अब इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस कर देंगे तो इसका रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा 100.578 100.578 माइनस करेंगे फोर साइड 2.005 तो आ गया 98.573। यहाँ तक जब तक हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करते हैं, जब वहां तक हमें इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड माइनस करके रिड्यूस्ड लेवल निकालना होता है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा रिड्यूस्ड लेवल आ गया, यहाँ पर बैक साइड भी दिया है, यहाँ पर जो हमें निकालना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम चेंज कर रहे हैं। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये आपका स्टेशन नंबर 5 है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप था इस पॉइंट पे स्टेशन 1 पे, आपने फिर यहाँ की रीडिंग लेने के बाद आपने आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपने यहाँ शिफ्ट कर लिया। ओके, यू कैन सी हियर कि आपकी ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपकी इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो चेंज हो जाएगी।
So you have to calculate the height of instrument here. निकालने के लिए मैंने फार्मूला पहले बता दिया आपको। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड, रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड। अब बताओ इस पॉइंट पे रिड्यूस्ड लेवल क्या है? 98.573 प्लस हो जाएगा 0.567, 98.573 प्लस करेंगे 0.567, ये आ गया 99.14। ये आ गया हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर 99.14। अब देखो आगे हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से अब you have to do the same thing that you were doing in the previous one. So आपका height of instrument यहाँ पे था, अब आपका height of instrument यहाँ पे भी आ गया, and you have to keep repeating the same steps, and you have to subtract the intermediate sides and foresights until and unless you reach the station 8. अब इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये इंटरमीडिएट साइड माइनस कर देना, क्योंकि रिड्यूस्ड लेवल जो पॉइंट का होता है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। अब इस वाले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आगे कैलकुलेशन करती है जब तक हमें बैक साइड में आ जाए, जब तक हमें बैक साइड में आ जाए जहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा तब तक इसी से कैलकुलेशन करना है। तो इससे माइनस करेंगे इंटरमीडिएट साइड 99.14 माइनस करेंगे 1.888, वो आ जाएगा 97.252 आ गया इसका रिड्यूस्ड लेवल। अब इसी में से ये इंटरमीडिएट साइड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो इसका रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा 99.14 माइनस करेंगे 1.818, 1.181, ये माइनस कर दिया तो ये आ गया 97.959। ऐसे ही इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाला फोर साइड माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारा रिड्यूस्ड लेवल। तो 99.14 माइनस कर देंगे 3.679, ये आ गया 95.461। अब देखो आगे यहाँ पर जो है ये रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा इस पॉइंट का, लेकिन यहाँ पर बैक साइड दिया है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं? रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया रिड्यूस्ड लेवल 95.461 प्लस करेंगे जो बैक साइड है हमारा प्लस करेंगे 0.612612, ये आ जाएगा इस टाइम का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि यहाँ पर हमने बैक साइड किया था तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब जो ये आ गया हमारा, इसी से आगे हमें कैलकुलेट करना है। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे 0.705 तो हमारा आ जाएगा रिड्यूस्ड लेवल 95.368। इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये फोर साइड माइनस कर देंगे तो रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा 96.073, 96.073 माइनस करेंगे ये फोर साइड 1.810 तो ये आ गया 94.263। अब हम लास्ट में जो है अरिथमेटिक चेक एक लगाते हैं। Now you have calculated all the RLs of the stations. Now you just have to check the readings that they are particularly okay or not. So we just do a arithmetic check that the first RL and the last RL, we just take the summation of that and we just check it. You just see here and how it is being done. Arithmetic check जो होता है हमारे पास वो लगाते हैं। Arithmetic check होता है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। Arithmetic check होता है summation of four sides minus summation of back sides होना चाहिए equal to reduced level of first RL पहला जो reduced level है minus last reduced level। अब देखो summation of four sides जो है, summation of four sides ये है ना हमारे पास, this plus this। So you have to take the summation of four side and the summation of back side that is given.
Okay, and if they comes out to be equal to the first RL minus last RL, then your calculation is correct. दिस प्लस दिस, ये है ना फोर साइड, इन तीनों का सम करके जो हमारा फोर साइड का सम आ जाता है वो आ जाता है 7.494, और यहाँ पर जो बैक साइड का सम आ जाता है, बैक साइड दिस प्लस दिस, इसका समेशन करके हमारे पास आ जाता है 1.757। अब देखो समेशन आप ये वाला हम ले लेते हैं, समेशन ऑफ फोर साइड्स आ गया 7.494 माइनस करेंगे समेशन ऑफ बैक साइड्स, वो कितना है 1.757, इसका माइनस कर देंगे 7.494 माइनस कर देंगे 1.757, ये आ गया 5.737, ये आ गया समेशन ऑफ फोर साइड्स माइनस समेशन ऑफ बैक साइड्स। अगर ये फर्स्ट रिड्यूस्ड लेवल माइनस लास्ट रिड्यूस्ड लेवल के इक्वल हो गया तो हमारा जो है क्वेश्चन ठीक किया हमने, सारी जो आंसर जो लाए हैं वो ठीक है। फर्स्ट आरएल क्या है, फर्स्ट आरएल जो है 100 और लास्ट आरएल है 94.263, 100 माइनस 94.263, 100 माइनस 96.243, 94.263, 94.263, ये देखो इसका वैल्यू 5.737 आ गया और इसका वैल्यू भी आ गया 5.737. So you can see here that the cross checking have been done properly and the values of both the criteria are being same. So that means that you have done the calculation correctly, and if they are not same, so you have to check the readings and you have to do the calculations again. Okay, so now we will be doing I will just be showing you another method, that is rise and fall method. So let me just share the video again so you are able to see, because it is very similar to the height of instrument method or a line of collimation method, you can say it as. So but there is some different procedure that is differently available in here. So you just see here. I hope you are able to see the screen now. Just see the particular question properly and how you have to segregate into the tables. राइज एंड फॉल मेथड एक मेथड होता है लेवलिंग में जो यूज होता है। हमने लेवलिंग डाटा कलेक्ट किया, उसको फिर इंटरप्रेट करने के लिए या रिड्यूस्ड लेवल फाइंड करने के लिए, जहां पर हमने रीडिंग्स ले लिया उनका रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड होता है ये। तो शुरू करते हैं आज दोस्तों। तो मैं पहले ही बता दूं, जो हमारा फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट सेट किया, जो भी इंस्ट्रूमेंट सेट किया, चाहे ऑटो लेवल सेट किया या डंपी लेवल, कोई भी लेवल सेट किया, और यहाँ पर जो है स्टाफ रख दी। तो इस इंस्ट्रूमेंट से जो हम पहली रीडिंग लेते हैं, पहली रीडिंग मैं इस साइड से दिखा देता हूँ। पहली रीडिंग जो लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से उसे कहते हैं बैक साइड। स्टाफ पे कुछ 1 मीटर 1.2 मीटर का हम रीडिंग लेते हैं, उसे कहते हैं बैक साइड। और जो बीच वाली रीडिंग्स है, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ग्राउंड कुछ दिया हुआ है, ये दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग, और जो फाइनल रीडिंग होती है, ये जो होती है ये वाली रीडिंग, पहला हो गया बैक साइड, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और फिफ्थ। और हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिर इंस्ट्रूमेंट को नए सिरे से सेट कर दिया। तो मतलब ये जो है, ये 2, 3 और 4 ये आ गई इंटरमीडिएट साइड्स। और जो लास्ट रीडिंग होती है, लास्ट रीडिंग जो होती है उसे कहते हैं फोर साइड। मतलब ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर, जब हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा है, तो ये वाली जो लास्ट रीडिंग होगी ये होगी फोर साइड, ये वाली होगी फोर साइड। जब तक हम इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करेंगे तब तक इंटरमीडिएट साइड्स चलती रहती है।
जब जैसे ही हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज करना तो वहां पर जो लास्ट रीडिंग आती है उसे फोर साइड कहते हैं। अब क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से फिर से इसी यहाँ पर ही स्टाफ रख के एक और रीडिंग ली जाती है, वो बन जाती है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए बैक साइड, और फिर आगे ऐसे ही चल। So you have seen the procedure that how it is being done on site. So you can see here that the backside is being taken from the first instrument setup that is being done on the site. Then we have take 2, 3, 4 points, and the final reading that we have taken from the initial station. You can see here that this is a four side, and we kept on repeating the same procedure until and unless we shift the station from one station to another station. होता है आगे आगे ये इंटरमीडिएट साइड्स और आगे चलता रहता है ऐसे ही। तो दोस्तों आ जाते हैं हम अब न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में ऐसे डाटा दिया होता है, the following readings were taken with a level of 4 मीटर स्टाफ। हमारे पास 4 मीटर स्टाफ है, उससे रीडिंग्स ले ली हमने। और जो बेंचमार्क होता है ना, बेंचमार्क ये या तो दिया होता है या तो हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हम ये बेंचमार्क ले लेंगे, या तो दिया होता है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि ये जो है ये रीडिंग्स दी है इसने, ये दी है रीडिंग्स, हमने रीडिंग्स ले ली है डिफरेंट पॉइंट्स की। So now you have been given different reading at the following points. So these are total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are total of 12 readings have been given which are collected on site, and the instrument is being shifted after 5th and 9th reading. So 1, 2, 3, 4, 5. So this will be your which one it will be your backside and foresight. So this one will be your, then after 12th 1, 2, 3, 4 will be your backside and foresight. So just keep focusing on the solution. That is very very important for your exam perspective also. और इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 5th एंड 9th रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है 5th और 9th रीडिंग के बाद, मतलब कि जो 5th रीडिंग होगी वो लास्ट रीडिंग होगी पहले इंस्ट्रूमेंट सेटअप की, और जब जो 9th होगी वो लास्ट रीडिंग होगी दूसरे इंस्ट्रूमेंट सेटअप की। मतलब लास्ट रीडिंग मैंने पहले ही बता दिया वो क्या होती है, वो होती है फोर साइड्स, वो होती है फोर साइड्स। मतलब अब मैं आपको बता दूं, जो पहली रीडिंग होती है, पहली रीडिंग हमेशा पता है हमें कि पहली रीडिंग होती है बैक साइड रीडिंग। अब आ जाओ इस पे, ये रीडिंग कहां पर लिखेंगे, फिर ये वाली रीडिंग लिखेंगे बैक साइड में 0.578। So just keep focusing that how you have to put the readings in the defined table of rise and fall method. लिख दिया बैक साइड में। आ जाओ इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग। दूसरी रीडिंग क्या है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ के बाद चेंज किया ना, ये जो है ये पहली रीडिंग तो हमें पता ही है बैक साइड होती है, और जो दूसरी तीसरी। So 5th स्टेशन के बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो शिफ्ट किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ये तीन जो रीडिंग है 2, 3, 4 दीज आर नोन एज दी इंटरमीडिएट साइड्स। चौथी रीडिंग आ जाएगी, ये किसमें लिखनी है, इंटरमीडिएट साइड में। मतलब 0.933, 1.768, 2.450, ये जो रीडिंग्स है ये आ जाएगी इंटरमीडिएट साइड। और जो लास्ट वाली रीडिंग होती है वो तो पता है हमें, वो होती है फोर साइड। मतलब ये वाली रीडिंग जो है फोर साइड में लिख देना, फोर साइड में आ जाएगी 2.005। अब देखो, अब मैंने क्या बता दिया, जो 5th रीडिंग होती है, जो लास्ट रीडिंग आ गई, इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट सेट करना है हमने, वहां पर ही इसी फोर साइड पे, ये जो फोर साइड आई थी अभी, इसी फोर साइड पे स्टाफ रख के हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए बैक साइड ले लेते हैं। मतलब ये जो आ गई रीडिंग, इसी के बाद ये वाली आ जाएगी बैक साइड रीडिंग, क्योंकि हम इसी पॉइंट पे क्या बैक साइड ले लेते हैं। तो ये वाली रीडिंग जो आ गई ना, ये आ जाएगी इसी की सीध में पीछे,
यहाँ पर आ जाएगी 0.567। अब ये वाली रीडिंग जो है अब कहाँ पर चेंज हुआ है, 9th रीडिंग पर, मतलब ये 5th 6th 7th 8th 9th पे चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर चेंज हुआ है। यहाँ पर ये आ गई, ये आ जाएगी फोर साइड में, बाकी जो बीच में आ गई सब वो आ जाएगी इंटरमीडिएट साइड में। इंटरमीडिएट साइड में आ जाएगा फिर 1.8। So you can see here that the intermediate sites are 7, 8 and 9, and after 12th, after 9th it has been shifted. 8 ये आ जाएगा ऐसे, और ये भी इंटरमीडिएट साइड में आ जाएगा 1.181 आ जाएगा इसी में। और फिर ये जो है 9th वाला रीडिंग किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर साइड में, क्योंकि 9th के बाद चेंज करना है हमने इसे देखें। तो 9th वाला रीडिंग जो आएगा वो आएगा फोर साइड में 3.679। और अब क्या है, अब जो 9th के बाद ये वाली रीडिंग हम इसी पॉइंट पे ले लेंगे, लेकिन ये अगले इंस्ट्रूमेंट का बैक साइड बन जाएगा। तो ये आ जाएगा बैक साइड में इसी के सीट में 0.612, और इसी के साथ आ जाएगा ये जो अगला फिर इंटरमीडिएट आ जाएगा। और लास्ट वाली रीडिंग हमेशा फोर साइड होती है, तो ये आ गया इंटरमीडिएट साइड 0.705, और लास्ट की रीडिंग जो भी होती है वो फोर साइड में होती है। फोर साइड में लिखेंगे 1.810। तो ये है जो डाटा हमारे पास होता है ना, यही इसी हिसाब से इस टेबल में ऐड कर देना होता है कि डाटा कैसे ऐड कर देते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो डाटा होता है हमारे पास उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे कैसे हम इस फॉर्म में लगा देते हैं। मतलब जिस रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट डिफरेंट होगा उस रीडिंग को फोर साइड लिख देना है, और उसके बाद वाली रीडिंग को बैक साइड, और जो आगे होती है उनको इंटरमीडिएट साइड में। अब मैं बताता हूँ राइज एंड फॉल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ये है, अब हमारे पास ऐसा ग्राउंड है, हमने जो ये वाला रीडिंग लिया, ये रीडिंग कुछ आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 1.6। अब जो अगला स्टाफ हम रखेंगे, अगला स्टाफ यहाँ पर रखेंगे, तो ये रीडिंग क्या आ जाएगी, ये वाली रीडिंग जो आ जाएगी ये आ जाएगी 1.6 से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, 1.6 मीटर, ये 2 मीटर आ गया। अब जो है, अब अगर हम पीछे वाली रीडिंग में से आगे वाली रीडिंग माइनस कर देंगे, 1.6 में से माइनस कर देंगे 2, वो आ जाएगा -0.4 आ जाएगा। मतलब माइनस दिखा रहा है, मतलब कि ये फॉल हो रहा है। ऐसे देखो, so you can see here that you have subtracted the first reading minus second reading. So in that case you can see here on the ground level the readings are getting in the negative point, so this is the fall, you can say it as the fall. Or if the reading start getting in positive sign, so you can say it as the rise. So this is being the particular concept in the rise and fall method. ये फॉल हो रहा है, नेगेटिव दिखाएगा, पिछली रीडिंग में से अगली रीडिंग माइनस कर देंगे तो फॉल दिखाएगा, क्योंकि फॉल ही हो रहा है। अब अगर ऐसे ही रीडिंग हमारे पास ऐसे ग्राउंड है, हम यहाँ पर ले लेंगे रीडिंग, तो आ जाएगी 1.6। अब अगर अगली रीडिंग ले लेंगे वो क्या आ जाएगी, वो 1.6 से कम आ जाएगी, तो वो आ गई 1। अब अगर हमने पिछली रीडिंग में से अगली रीडिंग को माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा 0.6। अगर ये वैल्यू पिछली रीडिंग में से अगली रीडिंग माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है, तो हमारा राइज क्या। अब अगर हमने लास्ट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग में से अगली रीडिंग माइनस कर देना, 0.578 माइनस करेंगे 0.933 करेंगे, तो देखो ये क्या वैल्यू आ गई, माइनस में आ गई। तो हमारा किस में लगेगा,
तो हमारा ये सारा, so you have to keep calculating like this and you have to put all the readings in the rise and fall column. फॉल में लगेगा, फॉल में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.355। ये हमें फॉल में लिख देना है, लेकिन इसके साथ जो है निशानी नहीं लिख देनी है, ऐसे ही लिख लेते हैं हम। तो अब ये है आ गई अगली रीडिंग, इसमें से ये माइनस कर देंगे 0.933 माइनस कर देंगे 1.768, तो आ गया 0.835। अब ऐसे ही ये पिछले वाली रीडिंग, अगली रीडिंग 2.450, तो ऐसे करेंगे 1.768 माइनस कर देंगे 2.450, 2.450, तो ये आ गई, ये भी नेगेटिव में ही आ गई, तो हमारा हाल में ही आ जाएगा 0.682। अब जो है, अब कौन सी रीडिंग है नेक्स्ट रीडिंग जो है ये वाली रीडिंग है, इसमें से ये माइनस कर दी 2.450 माइनस कर देंगे 2.005, तो ये आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो किस में लिख देना है, राइज में लिख देना है। राइज में लिख देंगे यहाँ पर, ये राइज वाला सेक्शन, ये फॉल वाला सेक्शन 0.445। अब ये लास्ट रीडिंग और अगली रीडिंग, ये यहाँ पर ध्यान देना है, ये वाली लास्ट रीडिंग और अगली रीडिंग ये आ जाएगी, तो मतलब करना 0.567 माइनस कर देना 1.888, ये आ गया फिर से नेगेटिव में, तो 1.321। ऐसे करके हम जो वैल्यू निकाल देते हैं। अब मैं ऐसे सीधे वैल्यू लिख देता हूं, 1.321 आ गया हमारे पास, और उसके बाद जो है ये और ये माइनस करके, इसमें से ये माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.707, लेकिन वो पॉजिटिव आ जाती है वैल्यू, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो किस में लिख देना है, राइट में। अब इसमें से ये माइनस कर देना है, तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाती है 1.818 माइनस करेंगे अगली रीडिंग जो है 3.679, तो ये आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू फिर से आ गई, तो हमने हॉल में लिख दिया। अब जो अगली रीडिंग है, अगली रीडिंग कौन सी है, 0.612 में माइनस कर देंगे 0.705, फिर से, क्योंकि पीछे वाली रीडिंग जो है छोटी है, अगले वाली रीडिंग बड़ी है, तो क्या आ जाएगा, फिर से हॉल में ही आ जाएगा 0.093। ऐसे करके इसमें से ये माइनस कर देंगे तो राइज में आ गया 1. इसमें से ये माइनस कर देंगे तो फॉल में आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, वो आ गया 1.105। अब देखना है रिड्यूस्ड लेवल। जो रिड्यूस्ड लेवल बेंचमार्क होता है वही पहला रिड्यूस्ड लेवल माना जाता है। जो हमारे पास बेंचमार्क किया है वही पहला रिड्यूस्ड लेवल माना जाता है, वो आ गया 100। अब सिंपल सी चीजें हैं, आप देखिए हमारे पास जो रिड्यूस्ड लेवल है वो है 100, पहला रिड्यूस्ड लेवल। जो पहला बेंचमार्क होता है वही पहला रिड्यूस्ड लेवल माना जाता है। अब अगर फॉल है तो माइनस कर देना, किसमें माइनस कर देना है, फॉल, तो उस पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0.2 का जो रिड्यूस्ड लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा 100 माइनस फॉल। अगर जहां पर राइज है वहां पर पिछले वाला रिड्यूस्ड लेवल प्लस कर देना है। अगर राइज वाला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राइज है, यहाँ पर जो रिड्यूस लेवल आ जाएगा उसमें प्लस कर देंगे ये वाला वैल्यू, तो आ जाएगा ये इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल, पॉइंट नंबर 5 का रिड्यूस लेवल। अगर फॉल है तो माइनस कर देना, अगर राइज है तो प्लस कर देना है। ऐसे करके देखो यहाँ से आ जाएगा 100, फॉल में है तो माइनस करेंगे 100 माइनस 0.355 कर दिया तो आ गया 99.645, ये आ गया। इसी में ये जो है ना 99.645, इसी में से फिर से ये माइनस कर देना है। जो पिछले वाली रिड्यूस लेवल है उसमें से अगला, अगर फॉल है तो माइनस कर देना, अगर राइज है तो प्लस कर देना। मतलब इसी में से ये फिर से माइनस करेंगे क्योंकि फॉल है हमारे पास, माइनस
835 कर दिया तो 98.81 आ गया। अब इसी में से फिर से फाल आ गया तो माइनस कर देना, फिर से माइनस कर देना 0.62 कर दिया तो 98.128 आ गया। अब देखो अब क्या है, राइज है, नेक्स्ट जो है राइज है, तो क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस कर देंगे 0.445 तो 98.573 आ गया। So you have to keep calculating the reduced level of the particular point in that part and keep considering the rise and fall readings of the particular stations. अब देखो फिर से फॉल है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1.321 कर दिया तो आ गया 97.252। अब इसी में ये जो है अगला राइज है तो प्लस कर देंगे, प्लस 0.707707, ये आ गया 97.959। अब इसी में फिर से फॉल आ गया तो माइनस कर देना है, माइनस 2.498 2.498 वो आ गया 95.461। अब इसी में फिर से फॉल आ गया तो माइनस कर देना, फिर से 0.093 आ गया 95.368। तो इसी में से फिर से फॉल आ गया तो फिर से माइनस कर देना, माइनस 1.105। तो ऐसे करके हमारा आ गया वैल्यू 94.263। ये आगे हमारे जो रिड्यूस्ड लेवल है, रिड्यूस्ड लेवल आ गए ऐसे। अब देखो अब हमारे पास अरिथमेटिक चेक होता है, अरिथमेटिक चेक होता है चेक करने के लिए कि हमारा जो ये आ गई वैल्यूज ये ठीक है कि नहीं। अरिथमेटिक चेक, अरिथमेटिक चेक हम कैसे करते हैं, वो होता है समेशन ऑफ 4 साइड्स माइनस समेशन ऑफ बैक साइड। अगर आगे आप इक्वल लास्ट फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल, फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल के बराबर, तो हमारा जो है वैल्यू, हमारा जो कैलकुलेशन है पूरा ठीक है। फिर देखो अब क्या होता है, 4 साइड्स का सम करेंगे हम, 4 साइड्स का सम करके दिस प्लस दिस, ये आ जाता है समेशन करके, 4 साइड्स का समेशन करके, तीनों 4 साइड्स का समेशन करके 7.494, इन तीनों का सम करके 7.494 आ जाए। और इसी के साथ जो बैक साइड्स का सम है, इस वैल्यू का, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, इनका सम करके आता है, इनका समेशन करके आता है 1.757। बैक साइड्स का 1.757 आ गया और 4 साइड्स का जो सम करके आया 7.494। अब लास्ट फर्स्ट रिड्यूस्ड लेवल क्या है, फर्स्ट रिड्यूस्ड लेवल तो हमारा 100 है और लास्ट क्या आ गया है 94.263। अब देखेंगे 4 साइड्स का समेशन करके 7.494 माइनस करना है समेशन ऑफ बैक साइड्स, वो आ गया 1.757। देखो ये वैल्यू क्या आ जाती है, 7.494 माइनस कर देंगे 1.757, तो ये आ गया 5.737। अब देखेंगे लास्ट रिड्यूस्ड लेवल, फर्स्ट रिड्यूस्ड लेवल माइनस लास्ट रिड्यूस्ड लेवल, फर्स्ट रिड्यूस्ड लेवल है 100 माइनस लास्ट रिड्यूस्ड लेवल क्या है 94.263, जो लास्ट आरएल है, ये वाला है ना लास्ट आरएल। तो माइनस कर देंगे 100 माइनस 94.263, ये जो वैल्यू आ गई ये भी आ गई 5.737। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ गई, तो मतलब कि हमारा जो है कैलकुलेशन पूरा सही है। So students, you have seen both the methods of leveling, how you have to calculate the reduced level of the particular stations and how you have to check it down.
So I will just elaborate regarding the comparison of height of collimation method, or you can say it as the height of instrument method and the rise and fall method. So we have some few points that I will tell you about it. So in height of collimation method, that is, it is very rapid and it saves a considerable time and labor. Okay. So, but in case of rise and fall method, we have to take the lots of readings and we have to compare the readings of the particular station by considering the rise or fall. And the second one, you can say it as the there is no check on reduction of RLs of the intermediate stations in the case of height of collimation method. But in case of rise and fall method, there is a complete check on the reduction of RLs of the intermediate stations. So obviously there is also a difference in the formulas that we use for the or the mathematical expression that we use in the height of collimation and the rise or fall method. So fifth one you can consider, that is the errors in any intermediate sites are not particularly detected in case of the height of collimation method. But in the case of rise and fall method, the errors that comes out to be at intermediate sites are noticed, and these are used for finding out the rises and fall. So these are the two methods which are very important in leveling chapter, and you have